Good morning, 10th standard. Welcome to SS class. Today we are going to do chapter 3 from your textbook, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Right? Now, before moving towards this chapter, first let us know what is the meaning of sculpture. Sculpture का मतलब होता है, sculpture कौन होता है? द स्कल्पचर कौन होता है? जो है ना मूर्तियां बनाता है. द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइंस विद फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय अ स्कल्पटर. और वो जो प्रोसेस होता है वो चिसल और हैमर से बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कल्पचर. राइट, I am highlighting the definition of sculpture. What is sculpture? The art of shaping figures or designs with facial expressions. Facials क्या होता है? Face के expressions. By a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture. ठीक है? And what is the meaning of architecture? Architecture का means होता है art of construction. Simple meaning of architecture means art of construction. Buildings वगैरह बनाना, right? So art of construction. So today we are going to study about the ancient Indian town planning, right? मोहनजोदारो, हड़प्पा में किस तरह की town planning थी, किस तरह का architecture था, right? In this chapter we will study. ठीक है? I'm starting the chapter. India is a world famous for its rich and cultural heritage. We have studied a lot about cultural heritage in our previous two chapters. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world, and it is very remarkable. Sculpture means to carve the feelings on stones, wood or metal with hammer and chisel, right? जो मूर्तियां बनाते हैं, वो जो भी मूर्ति बनाते हैं ऑन एनी मेटल, स्टोन है, वुड है या कोई भी दूसरा मेटल है, वो जब मूर्तियां बना रहे हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं? दे आर एडिंग देयर फीलिंग्स, राइट? दे आर कार्विंग देयर फीलिंग्स. आप देखो जब भी हम जैसे अभी गणपति आएंगे तो सब आप मूर्तियां वगैरह रखोगे, तो हर एक स्कल्पटर जो है वो खुद की फीलिंग से वो मूर्ति बना रहा होता है, राइट? उसकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, राइट? सो व्हाट इज स्कल्पटर? What is sculpture? Sculpture means to carve the feelings on stone, wood or on metal with hammer and chisel. The art of shaping figures or designs with facial expressions in round or in relief, professionally performed by a sculptor with the help of a chisel and a hammer, is known as sculpture. This is the definition of sculpture. ठीक है? मूर्तिकार को हम स्कल्पटर बोलते हैं और जो वो चीज बनाता है, जो मूर्ति बनाता है, उसको अपन स्कल्पचर बोलते हैं. आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर कौन होता है? आर्किटेक्ट वो होता है जो कंस्ट्रक्शन की लाइन में जुड़ा हुआ होता है. आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है? आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. The word वास्तु is used for architecture. ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है. वास्तु जो है वो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ संस्कृत वर्ड है. It has been taken from the Sanskrit language, right? And it is very much renowned in reference to construction, very much renowned or famous in the art of constructions of building houses, towns, wells, forts, minarets, temples, mosques, tombs, etc. Right? Skill of architect is seen in the art of architecture. Right? तो जो वास्तु जो है, जैसे आजकल हम इंडिया में बहुत सारा वास्तु मतलब बहुत फेमस हो गया है, हम वो फॉलो करते हैं, लेकिन देखा जाए ये वास्तु के अकॉर्डिंगली जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या अपने घर को हम डेकोरेट करते हैं, तो ये वास्तु कोई अभी नहीं आया है इंडिया में. वास्तु वाज देयर
पहले भी बहुत सालों, बहुत हजारों सालों पहले से हमारी, अगर आप टाउन प्लानिंग देखोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स देखोगे, हाउसेस, टाउन, वेल्स, फोर्ट्स देखोगे, मिनारेट्स देखोगे, टेम्पल, मॉस्क, जो है वो मंदिर वगैरह सब जो भी देखोगे, तो वो वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं, है ना। लेकिन अब क्या है कि ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे अभी क्या है कि फॉरेन में वास्तु बहुत फॉलो होता है, तो हम उनको देखकर अभी अब इंडिया में वास्तु फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फॉरेनर्स वो हमसे सीखकर वास्तु वहां पर गए हैं, है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि इतने सालों पुराने, जो हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, हजारों सालों पुराने जो उनकी टाउन प्लानिंग वगैरह है, तो वो वास्तु के हिसाब से किस तरह बनी हुई थी। या अगर हम लोगों ने हमारे विलेजेस के हाउसेस भी देखे होंगे, तो आप देखो वो वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। उनके भी विलेज में, गांव में अगर कोई है आपके घर, तो आप ऑब्वियसली देखोगे कि वो सब वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, राइट। तो लेट अस रीड अबाउट द एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग. India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during the archaeological excavation work. Excavation work क्या होता है? जब भी कोई भी बिल्डिंग या कुछ बन रहा होता है, तो जैसे हमें कोई पुरानी सी चीज मिलती है, तो हम बोलते हैं बहुत सालों पहले वाली ये चीज है। कभी दे डिग द ग्राउंड, तो उन लोगों को कुछ खजाना मिल जाता है, कोई पुराने से बर्तन मिल जाते हैं, राइट। तो ये जो एक्सकैवेशन वर्क के टाइम पे हम लोगों को सच वी हैव फाउंड सच टाउन्स, और वो टाउन्स किस तरह के थे हम अब पढ़ते हैं. द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, राइट. और वो 3 सेक्शंस जो थे वो कौन से थे? फोर्ट ऑफ रूलर्स, सिटाडल, houses of administrative officers situated on the upper part of the town, and residence of the common people situated on the lower part of the town. तो जो हमें जो ये टाउन्स मिले, तो वी हैव सीन द टाउन्स का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मतलब जो अपर पार्ट था, राइट, सबसे पहले क्या था? फोर्ट ऑफ रूलर्स, मतलब वहां पर जो है रॉयल्टीज लोग रहते थे, महल था, राइट. उनका जो भी रॉयल्टीज, राजा महाराजा बादशाह जो रहते थे, उनका फोर्ट था, ठीक है, फोर्ट ऑफ रूलर्स. फिर सेकंड जो कैटेगरी थी, सेकंड जो सेक्शन था, उसमें हाउसेस जो थे वो किसके बने हुए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए बने हुए थे, मतलब द पीपल हु आर वर्किंग विद द किंग, राइट. द पीपल हु आर वर्किंग विद द किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वजीर वगैरह सब, उन लोगों के जो है हाउसेस थे. और जो थर्ड सेक्शन था, इट वाज फॉर वो हाउस, वहां पर हाउसेस किसके थे? फॉर द कॉमन पीपल, राइट. द कॉमन पीपल resided over there, third sections में, that was the lower part of the town, right. So that means जो town जो था वो 3 sections में divided था. First section of the part had the fort of rulers, right. The second part consisted of the that was the upper part of the town, that consisted of the houses of administrative officers. और जो lower part of the town था, that was for the common people. The residence of the common people was situated on the lower part of the town. ठीक है. A fort of the rulers was constructed on the upper part of the town. Upper part of the town is safe and protected with houses having 2 or 5 rooms. Houses on the lower part of the town are mainly constructed with handmade bricks. अब ये बता रहे हैं कि फोर्ट ऑफ रूलर्स कैसा था. जैसे फोर्ट ऑफ रूलर्स, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, सबसे ऊपर फोर्ट ऑफ रूलर्स था, कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. जो सेकंड सेक्शन था, जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते थे, राइट. उनके रूम्स कैसे होते थे? मतलब दे हैड हाउसेस विथ हैविंग 2 और 5 रूम्स, राइट. फिर जो लोअर सेक्शन में जो कॉमन पीपल रहते थे, उनके जो हाउसेस थे वो भी मतलब पक्का घर था उनका भी. भले वो रेसिडेंस कॉमन पीपल का था, बट
The houses were made of handmade bricks, मतलब वो उनका भी पक्का घर था. This is a ancient town planning उस तरह की थी. The people of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of them, Harappa and Mohenjo-daro had the best town planning. अब ये जो हम बात कर रहे हैं एंशियंट टाउन प्लानिंग की, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की. तो अब ये बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर सबसे बेस्ट जो टाउन प्लानिंग थी वो थी हरप्पा और मोहनजोदारो की. तो लेट अस सी कि हरप्पा और मोहनजोदारो में किस तरह की टाउन प्लानिंग थी. Mohenjo-daro in 1922, archaeologist named Rakhal Das Banerjee underlined that, and Dayaram Sahani found out remains of a huge town planning during their excavation work, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mack in Larkhan district, which is now in Pakistan of Mohenjo-daro. अब ये जो थे सर जॉन मार्शल और कर्नल मैक, राइट, वो लरखान डिस्ट्रिक्ट में जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, राइट, वहां पर जब एक्सकैवेशन वर्क चल रहा था तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा ह्यूज टाउन मिला. मतलब ह्यूज टाउन की प्लानिंग पूरी जो थी वो उनको उस एक्सकैवेशन के टाइम पर मिली. तो नाउ लेट अस सी कि उसकी टाउन प्लानिंग किस तरह थी. मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है हीप ऑफ डेड्स. What is the meaning of Mohenjo-daro? आप अंडरलाइन कर दो, ये सब MCQ हो सकता है. Mohenjo-daro means the heap of deads. अब उधर कंस्ट्रक्शन कैसा था? The construction of town from the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on high plinth. अब मोहनजोदारो के टाइम पे जो हाउसेस थे, मतलब वो कहाँ पर बिल्ड थे? हाउसेस वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ, मतलब एक ऊंचाई पे बिल्ड होते थे, राइट. अब वो क्यों थोड़ा ऊंचे क्यों होते थे? सो एज टू प्रोटेक्ट देम, so as to protect the house from the floods or dampness. अब ये देखो, ये जो हम सोचते हैं कि आजकल के इंजीनियर्स और आजकल वी आर वेरी इंटेलिजेंट और हम हाउसेस इस तरह जो है बनाते हैं, मोहनजोदारो के टाइम पर भी कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो था, जो हाउसेस जो थे वो थोड़े सी ऊपर हाई प्लिंथ पे बने हुए थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्लड्स वगैरह बहुत होते थे. अब फ्लड अगर होगा तो पानी जो है घर के अंदर ना आ जाए, डैम्पनेस ना हो, इसके कारण हाउसेस हाई प्लिंथ पर होते थे. द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल, द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरी. मतलब वहाँ के जो रिच पीपल थे उनके हाउसेस कैसे थे? डबल स्टोरी थे, which had rooms having 5 to 7 rooms. ठीक है. While those of the poor people were single storied having 2 to 3 rooms. मतलब वहां पर पुअर लोगों के रूम्स जो थे वो कैसे थे? 2 to 3 रूम्स दे हैड, सिंगल स्टोरी. आजकल तो सिंगल स्टोरी 2 to 3 रूम्स अफोर्ड करना भी बहुत भारी पड़ गया है. ठीक है. द टाउन वॉज फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड मतलब जो टाउन जो था वो चारों तरफ से क्या होता था कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार से कवर होता था. अगर आप लोगों ने कोई हिस्टोरिकल मूवी देखी हो, या अभी हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के टाइम पे एक्चुअली वी हैव सीन रामायण एंड महाभारत एंड ऑल दैट. सो वी हैव सीन कि जहां पर वो एम्पायर दिखाए उसके दूर के बाद है ना पूरी वॉल से कवर होता है ना, पूरी वॉल, मतलब पूरी चारों तरफ दीवार. और वो दीवार है ना स्ट्रांगली बिल्ट होती है, फोर्टिफाइड होती है, स्ट्रांग होती है. और जहां पर भी आप चारों तरफ अगर दीवार देखोगे तो इट इज अंडरस्टूड कि उसके बीच में कोई टाउन है, राइट. तो मोहनजोदारो में भी ऐसे ही. The main entrance of the houses opened on the side lanes and not on the main road. अब this is a main characteristic. जो मोहनजोदारो के जो हाउसेस हैं, जैसे अगर हम अपने घर का दरवाजा या हम अपने जो मेन गेट है वो अगर हम ओपन करते हैं, या बिल्डिंग का गेट अगर ओपन करते हैं, तो हम सीधा भी लैंड अप ऑन द मेन रोड. जिनके भी घर मेन रोड्स पे हैं उनकी बात कर रहे हैं.
राइट. तो वी स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमारा मेन गेट एक ही होता है ना, वी लैंड अप ऑन द मेन रोड. बट यहाँ पर मोहनजोदारो के जो टाउन प्लानिंग है, उनका जो मेन एंट्रेंस होता था वो दोनों साइड, मतलब घर के जो बोथ द साइड्स है ना, वहां से वो उनका मेन एंट्रेंस होता था, दरवाजा वहां से खुलता था. एकदम सीधा आगे की साइड जो है मेन एंट्रेंस नहीं था, मेन रोड पे दरवाजा खुलता नहीं था. राइट. बिकॉज नाउ दिस इज सच अ गुड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि साइड में है तो आप लेन में जो है आप एंटर हो रहे हो. अगर आप सीधा मेन रोड पे खोल देते हो, मेन रोड इज अ लिटिल बिजी रोड, राइट, और वहां पर ही हमारे घर का दरवाजा खुल रहा है. राइट. तो आप सोचो कि उनका कंस्ट्रक्शन कितनी इंटेलिजेंटली किया हुआ है. Remains of storehouse, kitchen, bathroom were found in every house. So these are the things, these are the common things: storehouse, kitchen, bathrooms. ये हमारे घर में भी होते हैं. So that time also they had a storehouse, kitchen, bathrooms in every house. There was a proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy and ventilated. Right? This was the किस तरह का हाउस था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन किस तरह का था. ठीक है, मोहनजोदारो का. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द रोड्स. रोड्स कैसे थे? रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. राइट. अब कैसे? द रोड्स वर वेरी वाइड. कैसे थे? 9.75 मीटर्स वाइड. मतलब रोड्स जो थे मोहनजोदारो के टाउन प्लानिंग के, दे वर वेरी वाइड, 9.75 meters wide. The small link roads cross the major ones at right angles. Right? जो भी जो link roads हैं, the joining roads जो हैं, they joined the major roads, the major बड़े वाले roads को वो join करते थे at right angles. कहने का मतलब कि कहीं से भी joining road नहीं निकल जाता था. राइट. बहुत प्रॉपरली राइट एंगल्स में रोड्स जो है ज्वाइन होते थे. द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम. अब नेचुरली 9.75 मीटर्स वाइड थे, सो दैट यू नो नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन पास एट वन टाइम. राइट. काफी बार हम लोगों ने अभी देखे हैं कि हमारे रोड्स कितने नैरो हैं, एंड बीइंग नैरो सो मेनी व्हीकल्स आर पासिंग, तो यू नो ट्रैफिक जैम हो जाता है. पर एट दैट टाइम इमेजिन, वो टाइम हम बात करें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. राइट. और वहां पर उस टाइम पर भी रोड्स जो है दे मेड इट इन सच अ वे कि इट इज वाइड इनफ फॉर मेनी व्हीकल्स टू पास. पिट्स ऑन द रोड साइड suggest that they might have been लैम्प पोस्ट. अब उनको तो ये सब एक्सकैवेशन में मिला है ना, तो वहां पर दे रेड या दे सॉ दैट पिट्स वर आल्सो देयर. तो पिट्स से उन्हें पता चलता है कि रोड्स पर उस टाइम भी लैम्प पोस्ट, दैट इज लैम्प यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वो लगे हुए थे. रोड्स ऑफ द टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स. जो रोड्स ऑफ द टाउन जो थे, दे वर स्ट्रेट रोड्स. Right, they did not have much turnings or without any turns. This is considered to be the speciality of a ancient time roads. Right. So now there are two main roads. There were two main roads. कौन सा था? One going from north to south and another going from east to west. And both these roads they crossed each other at right angle. Now, इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने प्रॉपरली बने हुए थे, इतने प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किए हुए थे. इट वाज नॉट हैपहैजर्ड रोड्स, यू नो, जो अभी मैंने आपको बताया, लिंकिंग एंड जॉइनिंग एनी रोड फ्रॉम एनीवेयर. नहीं, मतलब आइदर इट वाज नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट. राइट. एंड दे मेट ईच अदर, दे क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल. तो ये रोड्स की स्पेशलिटी थी. देन कम्स ड्रेनेज सिस्टम. मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम है, ये भी बहुत एक यूनिक फीचर है ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. ड्रेनेज सिस्टम. राइट. Such a drainage system was found nowhere except in the islands of Crete. कहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल देखा इसका? Islands of Crete in Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house had a cesspit. This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that
they were very careful about their health and hygiene. मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम कैसा था कि जो डर्टी वाटर जो हर एक घर से निकलता वो सीधा टाउन से बाहर आ जाता, बिकॉज एवरी हाउस हैड अ सेसपिट, राइट। और ये सिस्टम जो था ये इतना प्लान्ड था, इतना सिस्टमैटिकली था कि ड्रेन आउट डर्टी वाटर फ्रॉम आउट फ्रॉम द टाउन, राइट, विच शोड कि दे वर डेफिनेटली केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, क्योंकि अगर टाउन डर्टी रहेगा तो डेफिनेटली बीमारियां हो जाएंगी। सो एट दैट टाइम ऑल्सो दे वर अवेयर, मतलब उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रूव करता है, उसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि दे वर डेफिनेटली केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, राइट। नाउ कम्स पब्लिक बाथ। अब पब्लिक बाथ क्या है? A huge public bath was excavated at Mohenjo-daro, right? There was an arrangement to put pure fresh water in and dirty water out. अब ये पब्लिक बाथ में मतलब फ्रेश वाटर जो है वो इन एंड डर्टी वाटर आउट, राइट, वो भी अरेंजमेंट था। ऐसा नहीं है कि इन और आउट इनलेट एंड आउटलेट जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ हो, प्रॉपर अरेंजमेंट था जिससे फ्रेश वाटर जो है वो इन आ सकता है अंदर और डर्टी वाटर को हम बाहर रिमूव कर सकते हैं। There might have been the facility for hot water and small rooms for changing. तो आप इमेजिन करो कि हॉट वाटर का जो फैसिलिटी है उस समय भी थी, राइट, एंड देयर वाज आल्सो अ चेंजिंग रूम, राइट। हम लोगों ने अभी देखा है, हम लोग जब भी आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव गॉन और नॉट, हम कभी तीर्थ करने जाते हैं या जब भी पेरेंट्स के साथ हम गए हैं तो वी हैव सीन द पब्लिक बाथ्स, यू नो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप फेस्टिवल्स में जाओ, मेले में जाओ, तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं जहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह हो रही होती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी क्राउड होती है, राइट। तो वहाँ पर क्राउड्स में हमने पब्लिक बाथ्स देखे हैं, छोटे छोटे से बाथरूम्स बने हुए होते हैं, है ना, देखा है हम लोगों ने। ह्यूज बहुत बड़ा सा टैंक होता है, ऊपर बहुत बड़ा टैंक जो है वाटर टैंक लगा हुआ होता है और चेंजिंग रूम्स होता है, ये सब हमने देखा है पब्लिक बाथ। तो ये हम अब देख रहे हैं। दिस मीन्स टू से दैट ड्यूरिंग मोहनजोदारो's टाउन प्लानिंग, राइट, एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये मोहनजोदारो के टाइम पर भी ऐसा पब्लिक बाथ था, राइट। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। And these public baths might have been used for the festivals or the religious ceremony, जो आज भी अपन इस तरह के public baths use करते हैं when we move out. Public buildings. अब वो excavation में उन लोगों ने एक और चीज देखी, they have seen the two public buildings. They have seen two public buildings. ruins of two public building, ruins यानी टूटी हुई two public buildings उन्होंने देखी, और वो कौन सी थी और वो किस तरह की काम आती थी, we will see. The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theatre or an administrative office or a granary. The barrack of such buildings was also found out. This might have been also used to accommodate soldiers. अब उन्होंने जो two huge buildings देखी मोहनजोदारो में, so they are saying कि वो huge building या तो कोई town hall होगा, right? Town hall is again a public hall, और या तो कोई theater होगा, or they must have used it for the administrative office or a granary. Administrative office और a granary, granary होता है जहाँ पर grains हम store करते हैं, राइट, तो शायद हो सकता है कि वो ग्रैंडरी की तरह यूज होता हो। और एक और बिल्डिंग जहाँ पर उन्होंने देखी कि वहां पे बैरिक्स बने हुए थे, द बैरिक ऑफ सच बिल्डिंग वाज आल्सो फाउंड। बैरिक कौन सी बिल्डिंग में बने हुए होते हैं? ऐसे छोटे से बैरिक्स बने होते हैं जहाँ वी कैन सी दैट की सोल्जर्स वर अकोमोडेटेड, मतलब वो बिल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि दैट बिल्डिंग मस्ट हैव वाज यूज्ड टू अकोमोडेट द सोल्जर्स, राइट। This is the town planning of Mohenjo-daro. Harappa. In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Meg, जो अपन ने अभी बात किया मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग के टाइम पर,
right? Dayaram Sahni discovered very ancient remains of Indus Valley civilization from Montgomery in Punjab. अब ये एक्सकैवेशन कहाँ पर उनको मिला? जो अभी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, नियर हरप्पा. The remains of Indus Valley civilization were found from Rapar in Himalayan region, underline, Alamgirpur in Meerut in UP, Kalibangan in Rajasthan, Lothal at Dholka in Gujarat, Deshalpur, Shikarpur in Kutch, Dholavira, Rangpur near Limdi in Saurashtra, Srinathgarh near Gondal, Kontasi near Morbi, and Somnath. The region of Sapt Sindhu, Sapt का मतलब क्या होता है? 7. The region of Sapt Sindhu river is a region of our Indian culture. The culture which developed here is known as Indus Valley civilization. Its remains were found first of all from Harappa. That is why it is known as Harappan civilization. अब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमने और भी चीज देखी. कौन सा था? कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन. अब जो चीजें हमें मिली उस वो मेटल कौन सा था? आइदर कॉपर के मेटल की थी थिंग्स या स्टोन की मेटल्स की थी वेपन्स वगैरह जो थे. तो हमें पता चलता है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर कॉपर और स्टोन यूज किया जाता था. That is why it is also known as Copper Stone Age, right? Town planning of Harappa civilization was very systematic. Its granaries and forts were remarkable. People of that age were fond of wearing ornaments. Such remains have been found. अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि द पीपल ऑफ दैट टाइम दे वोर ऑर्नामेंट्स. तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिमेन्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग कैसे थे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आएगी एंड इफ दे वांट टू नो अबाउट अस, राइट, यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी वर एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, बिल्डिंग्स, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, जो अभी हमने जैसे टाउन प्लानिंग पूरा पढ़ा, राइट. उससे जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा, वो गेस कर सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी वर, राइट. और हम लोगों ने अभी क्या क्या जो है अचीव किया है, और क्या हम लोगों ने, हम कौन सा जो है मेटल्स यूज करते थे, किस तरह के लोग थे, हमें क्या पसंद था. तो ये जो लेफ्ट ओवर चीज होती हैं एक्सकैवेशन के टाइम पे मिलती हैं, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लोग गेस कर पाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर. ठीक है. तो उसी तरह ही कि we came to know people of that age, they were fond of wearing ornaments because such remains have been found, right? Now comes Dholavira. Dholavira is a huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization. It is 2 kilometers away from, it has, Harappan civilization have been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadarbat in West Desert of Bachau Taluka. West Desert of Bachau Taluka, which is about 140 kilometer away from Bhuj. Archaeological Department of Gujarat surveyed this heap of ruins. After this, the officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990 AD. Special task of excavation was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bisht. Remains at Dholavira places and the main walls of the town were painted with white color, right? मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि white color was basically used, right? Places and main walls of the town were painted with white color. Such fortified, again मैंने क्या बताया था, strong walls encircling town suggests that there was a strong security. मैंने अभी आपको बताया था कि चारों तरफ जो है स्ट्रॉन्ग वॉल पहले बिल्ड कर दी जाती थी, और पता चलता था कि ये स्ट्रॉन्ग वॉल के बीच में कोई टाउन होगा. दिस इज व्हाट इवन दे फाउंड इन ढोलावीरा. दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स.
potable water was available, that is clean water was available here, as well as proper system of water purification was also set up here, which is not made available to all even in modern age, because at that time matlab even the clean water, potable drinking water was available, and even there was a proper water system, water purification system was there, right, during that time. Then comes Lothal. Lothal is situated in Dholka Taluka of Ahmedabad district. Dholka is a place between two rivers, Bhogavo and Sabarmati. It is 18 kilometers away from Bay of Khambat, from where 3 layers of human habitat were found. और वहां पर उनको क्या दिखा है, ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड. डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पर शिप्स का आना जाना होता है, ठीक है. A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the times of high tides at the lower eastern part of the town. मतलब वहां पर एक डॉकयार्ड जहां पर शिप्स को रखा जाता है, that was constructed during that time, क्योंकि जब हाई टाइड्स और हाई वेव्स होती हैं तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द शिप्स, राइट. तो वहां पर मतलब शिप्स को रखे जाते थे. एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल, right? So what is the unique feature of Lothal? A huge dockyard wala. Such dockyard storage shops etc. show the proof of export and import. और अगर शिप्स हैं तो डेफिनेटली वहां पर जो है ट्रेड होता है, राइट. शिप्स का आना जाना यानी क्या है, ट्रेड हो रहा है. तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड उस टाइम पर भी लोग करते थे. This suggests that Lothal people might have been rich and prosperous in India. So that means Lothal was a rich and prosperous port of India, है ना. मतलब लोथल जहाँ पर जो है हमने देखा कि ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड, इससे हमें क्या पता चलता है कि लोथल वाज अ रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया, राइट. दिस is a matter of great pride not only for Gujarat but also for the history of India.